लेक्चर 3 में पी ब्लॉक एलिमेंट, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डाइनाइट्रोजन एंड अमोनिया। तो फर्स्ट टॉपिक इज द डाइनाइट्रोजन। हम लोग दो तीन चीज़ें पढ़ते हैं, प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट इज द प्रिपरेशन, हाउ कैन वी प्रिपेयर द डाइनाइट्रोजन। तो फर्स्ट इज द डाइनाइट्रोजन is produced commercially by the liquefaction or frictional distillation of air, because we know that the main composition of air is a oxygen and nitrogen. So by the fractional distillation of air we can get or commercially prepared the nitrogen. Okay. When a liquid is allowed to distill, dinitrogen having a lower boiling point 77.2 Kelvin, तो it distill first और उसको फिर हम क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे एंड देन हमें जो मिलता है वो ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, तो दिस इज़ अ कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ डाइनाइट्रोजन फ्रॉम द एयर। सेकेंड प्रिपरेशन, सेकेंड इज अ लेबोरेटरी प्रिपरेशन। विच टाइप ऑफ प्रिपरेशन इज अ लेबोरेटरी प्रिपरेशन। ठीक है, तो व्हेन इक्विमोलर, तो इन द लेबोरेटरी preparation dinitrogen is preparing treating in aqueous solution of ammonium chloride with sodium nitrite. Ammonium chloride treated with the sodium nitrite. तो इट इज़ अ टू स्टेप प्रोसेस। बेसिकली जो अमोनियम नाइट्राइट जो होता है, अमोनियम नाइट्राइट इज अ अनस्टेबल कंपाउंड। तो अमोनियम क्लोराइड NH4Cl NiNO2 reacts with to form ammonium nitrate NH4NO2. okay, and this NH4NO2 on heating gives H2. So this is a basic reaction कि ammonium chloride and NiNO2 sodium nitrate reacts to form ammonium nitrate. This is called ammonium nitrate, and ammonium nitrate on heating produce nitrogen. ठीक है, produce nitrogen. In this preparation, this small amount of NO and HNO3 is also prepared. ठीक है, as impurity, and it can be removed by passing it through the aqueous sulfuric acid containing potassium dichromate solution. Okay, so we can separate out the NO and HNO3 and we'll get the pure nitrogen gas. Next preparation is from ammonium dichromate. Okay, so next is a nitrogen can also be obtained by thermal decomposition of ammonium dichromate. NH4 whole twice Cr2O7 is ammonium dichromate which on heating produce nitrogen gas. Okay, and this is another preparation. And last is a most important, एक बार IIT में पूछा भी एक क्वेश्चन कि how can we prepare very pure nitrogen. तो next preparation is a very pure nitrogen can be obtained by the thermal decomposition of sodium or barium azide. Okay, sodium or barium azide. तो BaN3 whole twice on heating gives Ba plus 3N2. So this is the method by which we can prepare the pure nitrogen. Second is the sodium azide. So sodium azide is 2NaN3 on heating at about 573 Kelvin. 573 Kelvin form 2Na plus 3N2. This is the preparation by sodium azide on heating 573 Kelvin. We can be prepared 2Na and sodium and nitrogen gas. This is the thermal decomposition of sodium nitrate. Okay, जो भी सेफ्टी डिवाइसेस होते हैं उसके अंदर इसी गैस को भरा जाता है, सोडियम नाइट्रेट को। जो नाइट्रोजन गैस निकलती है वो सेफ्टी डिवाइसेस या जो एयर बैग्स होती है यूज़ फॉर द सेफ्टी डिवाइसेस कार, उसके अंदर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम नाइट्रेट ही यूज़ किया जाता है, सोडियम नाइट्रेट का यूज़ किया जाता है, या सॉरी सोडियम नाइट्रेट का, सोडियम एजाइड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये एक हमारे पास अगली प्रिपरेशन रिएक्शन है। तो टोटल 4 प्रिपरेशन रिएक्शंस आई है। एक कमर्शियल प्रिपरेशन, इट मीन्स fractional distillation. By the fractional distillation of air we can prepare nitrogen. Second, thermal decomposition of ammonium nitrate. Third is a thermal decomposition of ammonium dichromate, and last is a pure form we can prepare by the thermal decomposition of sodium azide or the barium azide. Next is the property, physical property, simple properties of the nitrogen.
तो नाइट्रोजन, डाइनाइट्रोजन, वी नो दैट डाइनाइट्रोजन इज अ कलरलेस, odorless, tasteless and non-toxic gas. It's a suffocating gas but non-toxic. Next is a nitrogen atom has two stable isotopes, N14 and N15. So two stable isotopes are here. Third is a very low solubility in water. Nitrogen is very less soluble in the water. We have learned in chapter Henry's law. The solubility of nitrogen is very less in the water and the blood also. So 23.2 centimeter cube per liter of water at 273 Kelvin and 1 bar pressure. So solubility is very low. Okay. Next is also the low freezing and boiling point. It has very low freezing and boiling point. Freezing point is 63.2 Kelvin and the boiling point is only 77.2 Kelvin. 77.2 Kelvin. Okay. This is the boiling point. And next is the most important. ये क्वेश्चन है कई बार हुआ कि वाई नाइट्रोजन N2, here will be triple bond. Nitrogen is rather inert at room temperature because at high bond dissociation enthalpy. So nitrogen is chemically inert at the room temperature, we know that. Why it is chemically inert? Because its bond dissociation enthalpy is very high, 941.4 kilojoule per mole. How much? 941.4 kilojoule per mole. This is too much high bond dissociation enthalpy. That's why nitrogen is chemically inert at room temperature. Okay, that's why हम इसको inert atmosphere बनाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं डाइनाइट्रोजन को. फिर नेक्स्ट हमारे पास है कि रिएक्टिविटी, बट हमने कहा कि केमिकली इनर्ट एट द रूम टेम्परेचर, बट इट्स रिएक्टिविटी स्लाइटली इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. ओके, so they are the properties of the dinitrogen. Now next property, chemical properties. The first chemical property is at higher temperature is directly combined with some metal. So reactivity with the metals, to directly combine with the metal to form ionic nitrides and with the non-metal form covalent nitride. तो metal के साथ कैसे बना रहा है ये ionic nitride बना रहा है और non-metal के साथ कैसा बना रहा है covalent nitride प्रिपेयर कर रहा है. तो few examples are here कि lithium reacts with nitrogen to form lithium nitride, magnesium reacts to form magnesium nitride. In place of magnesium lithium we can take any other like 3Ca plus N2. If you take calcium with nitrogen on heating form calcium nitride Ca3N2. So just like a magnesium you can take calcium also. So calcium reacts with the nitrogen to form calcium nitride. Okay, so this is the first chemical reaction. Second chemical reaction is dinitrogen action the dioxygen, oxygen with the dioxygen. किसके साथ है next chemical reaction? Action with the dioxygen. तो nitrogen reacts with dioxygen to form NO, nitric oxide, 2NO. ठीक है, this reaction takes place at very high temperature like 2273 Kelvin to 3273 Kelvin. It's too much high temperature is required. So at very high temperatures reacts with the nitrogen reacts with the oxygen to form nitric oxide. Okay, so these two reactions are given in NCERT book. So properties of the dinitrogen. Clear? उसके बाद है हमारे पास next is active nitrogen. Is another you should know that active nitrogen. So what is active nitrogen? So it can be made by passing an electrical spark through where nitrogen gas. अगर हमने electrical spark pass करें to the nitrogen gas at very low pressure, तो the form atomic nitrogen, ठीक है, is associated with yellow pink afterglow. So active nitrogen is very reactive and reacts with very number of elements, ठीक है, and form a number of compounds. तो हम आगे जाके उसको पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम साइनोजन बना रहे हैं कुछ है ना, एसिटिलीन की रिएक्शन करा के विद द नाइट्रोजन. फिर सम इम्पोर्टेंट अनदर यूजेस. व्हाट इज द यूज ऑफ द नाइट्रोजन? तो नाइट्रोजन इज यूज इन द नाइट्रिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड, अमोनिया, कैल्शियम साइनामाइड. ठीक है, डाइनाइट्रोजन यूज टू फिलिंग इलेक्ट्रिकल बल्ब
to reduce the rate of volatilization of the tungsten filament. ठीक है. Liquid dinitrogen used in a refrigerant to preserve biological material, food items. So they are the uses of the dinitrogen. Two question is there. फर्स्ट इज राइट द रिएक्शन ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम एजाइड. तो अभी हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे सोडियम एजाइड का जो रिएक्शन लिखा, हमने क्या लिखा, हमने लिखा कि जो सिंपल सा रिएक्शन था हमारे पास, 2Na(N3) गिव्स ऑन हीटिंग 2Na प्लस 3N2. दिस इज द आंसर कि ऑन हीटिंग सोडियम एजाइड गिव्स सोडियम एंड नाइट्रोजन. सेकेंड क्वेश्चन इज why N2 is less reactive at room temperature? Why? Because it has a very high bond dissociation enthalpy. That's why it's a very less reactive at the room temperature. Next topic is, today's next topic is ammonia. So preparation of ammonia. Preparation of ammonia. So first preparation, ठीक है, ammonia is present in a small quantity in air and the soil where it's formed by the decay of nitrogenous organic matter. ठीक है, NH2CO NH2. तो NH2CO NH2 इसको जब हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलाइज कर रहे हैं, तो क्या बना रहा है हमारे लिए, अमोनियम कार्बोनेट बना रहा है. क्या बना रही है, अमोनियम कार्बोनेट. ठीक है, तो अमोनियम कार्बोनेट बन रहा है और अमोनियम कार्बोनेट डिसोसिएट होकर विल प्रिपेयर अमोनिया. दिस इज द फर्स्ट प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ अमोनिया. ठीक है, सेकेंड प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया प्रिपेयर, सेकेंड इज जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं यहाँ पे, ऑन स्मेल स्केल अमोनिया इज ऑब्टेन बाय फ्रॉम अमोनियम सॉल्ट. कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं हम, अमोनियम सॉल्ट से, विच डिकम्पोज व्हेन ट्रीटेड विद द कास्टिक सोडा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा से जब हम रिएक्ट कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे मिल रहा है. ठीक है, तो ये है रिएक्शन ऑफ अमोनियम सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस. बेसिकली इज कॉल्ड रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद द स्ट्रॉन्ग बेस. तो देखिए सिंपल सी रिएक्शन है, अमोनियम क्लोराइड स्ट्रेटेड विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. तो यहाँ पे क्या हुआ, अमोनिया बन गया, कैल्शियम रिएक्ट्स विद द क्लोरीन टू फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर अलग हो गया. इन द सेकेंड रिएक्शन अमोनियम का सल्फेट किसमें कन्वर्ट हो गया, अमोनिया में. सोडियम सल्फेट से रिएक्ट करके यहाँ पे क्या बना ले रहा है, सोडियम सल्फेट, और बाकी जो बचा वो क्या अलग हो गया, वाटर. तो दिस इज अ प्रिपरेशन रिएक्शन, अनदर प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ अमोनिया. Third and most important, the preparation of ammonia by Haber process. This is the most important. मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया बाय द कमर्शियल स्केल पे हम जब भी प्रिपेयर करते हैं वो किससे प्रिपेयर करते हैं, बाय द हैबर प्रोसेस. दिस इज द कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया. ठीक है, लार्ज स्केल. तो हैबर प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है. इस पर क्वेश्चन हमेशा पूछा गया कि राइट द फेवरेबल कंडीशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया. ठीक है, और व्हाट इज़ द फेवरेबल कंडीशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया. ये क्वेश्चन सीबीएसई के बोर्ड के एग्जाम का है. तो यहाँ पे सबसे पहले तो रिएक्शन बड़ी कॉमन है, आप कई बार पढ़ चुके हैं. N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3. दिस इज़ द बेसिक रिएक्शन. ठीक है, ये आप कई बार पढ़ चुके हैं. और इसमें जो बॉन्ड एंथैल्पी चेंज आ रहा है वो कितना आ रहा है, -46.1 किलो जूल पर मोल, या 92.4 किलो जूल पर मोल. ठीक है, अब यहाँ पे हम देखें तो इन अकॉर्डेंस विद द ली चैटलियर अब -46.1 किलो जूल. अब यहाँ पे जो फेवरेबल कंडीशन है वो 3 फेवरेबल कंडीशन हमको मिलती है. एक, प्रेशर कितना होना चाहिए, 200 इंटू 10⁵. ये होगा आपका, यहाँ पे क्या होगा, 10⁵. ठीक है, 200 इंटू 10⁵, और अबाउट 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. टेम्परेचर जो हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, टेम्परेचर अब अराउंड 700 केल्विन. एंड द कैटलिस्ट. ठीक है, जो हम कह रहे हैं कि 700 केल्विन पे भी कैटलिस्ट टेम्परेचर पे रिएक्शन क्या है, काफ़ी लो है. तो वी नीड कैटलिस्ट, स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड. ठीक है, समटाइम्स मोलिब्डेनम इज यूज एज अ प्रमोटर. ठीक है, तो ये जो आपके क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है. तो यहाँ पे 3 हमारे पास स्पेशली कंडीशंस आते हैं, 3 कंडीशंस फेवरेबल कंडीशन. 1, टेम्परेचर अराउंड 700 केल्विन, प्रेशर 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड द कैटलिस्ट. व्हाट आर द कैटलिस्ट, द आयरन ऑक्साइड. ठीक है, आयरन ऑक्साइड विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, and which are using promoter, molybdenum use as a promoter.
तो दिस इज द हैबर प्रोसेस। ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर लर्न करना। उसके बाद आ गया प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया इज अ कलरलेस गैस विथ पंजेंट स्मेल। अमोनिया की स्मेल सभी ने ली है, तो अमोनिया इज अ वेरी पंजेंट सफोकेटिंग स्मेल। ठीक है, यह सफोकेटिंग तो नहीं है बट कैरेक्टरिस्टिक पंजेंट स्मेल हैविंग अमोनिया। ठीक है, सेकेंड, इट फ्रीजेस एंड बॉइलिंग पॉइंट इज हाउ मच, 198.4 Kelvin and 239.7 Kelvin। ठीक है, इट इज़ एसोसिएटेड थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्ड। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया जब हम नाइट्रोजन हाइड्रेट पढ़ रहे थे, तो हमने कहा था कि अमोनिया हैज़ एक्सेप्शनली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देन द अदर हाइड्रेट। वाई? बिकॉज इट्स एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण क्या होता है, इसकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हायर होता है। ठीक है, द एक्सपेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मास द अमोनिया मॉलिक्यूल इज ट्राइगोनली प्लेनर। इसका स्ट्रक्चर हमको अच्छे से पता है, ये स्ट्रक्चर है इसका, अमोनिया का स्ट्रक्चर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये स्ट्रक्चर हमको सबको पता है, दिस इज द ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। एंड नाइट्रोजन एक यहाँ पे क्या है, लोन पेयर है, और उस लोन पेयर की प्रेजेंस के कारण ये कैसा होता है, लुईस बेस होता है। कैसा होता है ये, लुईस बेस। इट हैज़ अ ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, तो सॉरी ट्राइगोनल प्लेनर कह रहा हूँ, पिरामिडल स्ट्रक्चर, सॉरी पिरामिडल स्ट्रक्चर, इट हैज़ अ पिरामिडल स्ट्रक्चर। ठीक है, पिरामिडल स्ट्रक्चर है, बॉन्ड एंगल कितना हो जाता है, 107, है ना। और जो बॉन्ड लेंथ है हमारे पास कितनी आ रही है, 101.7 पिकोमीटर। बॉन्ड लेंथ कितनी है, 101.7, बॉन्ड एंगल कितना, 107.8, और हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, तो वी नो दैट इट इज़ अ sp3 हाइब्रिडाइज। Which type of hybridized? sp3 hybridized. Clear? Next is the properties of ammonia. तो अमोनिया की बहुत प्रॉपर्टी तो हमें एनसीईआरटी बुक के हिसाब से नहीं पढ़नी है, बहुत ज़्यादा सिलेबस में हमारे नहीं है 12th के अमोनिया की प्रॉपर्टीज़। सम ऑफ द प्रॉपर्टीज़ आर हियर। अमोनिया गैस इज हाईली soluble in water and in aqueous solution uniquely basic due to formation of OH ion. तो अमोनिया when the reacts with water to form ammonium hydroxide NH4OH which dissociate to gives NH4 plus and the OH minus। तो ये कह रहे हैं कि दैट्स व्हाई वीकली बेसिक है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ OH ion, है ना। अब क्योंकि ये OH ion दे रहा है, तो ये अमोनियम सॉल्ट जो होता है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे, जब हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में जाते हैं या फिर हम जो भी क्वालिटेटिव मेजरमेंट करते हैं। तो सेकेंड है इज फॉर्म्स अमोनियम सॉल्ट विथ एसिड अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम sulfate as a weak base. It precipitate the hydroxide. It precipitate the hydroxide oxide in some metals of many metals and their salt solution. और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जब हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं आयरन का, हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं जिंक का, तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड को एज ए ग्रुप रिएजेंट। ठीक है, अब ना जिंक सल्फेट, हेयर इज जिंक सल्फेट रिएक्ट विथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो हमारे पास यहाँ पे क्या रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पे जिंक सल्फेट रिएक्ट कर रहा है, ZnSO4 किससे रिएक्ट कर रहा है, हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कर रहा है तो जिंक OH मिलके हमारे पास क्या दे रहा है, ZnOH होल ट्वाइस, ये प्रिपेयर हो जा रहा है हमारा। ये किस कलर का होता है, वाइट कलर का होता है। तो ये प्रेसिपिटेट मिलेगा, वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ जिंक हाइड्रोक्साइड अमोनियम सल्फेट से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, अमोनियम सल्फेट। तो हमारे पास यहाँ जिंक हाइड्रोक्साइड का क्या मिल गया, वाइट प्रेसिपिटेट, एंड वी कैन आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ जिंक। सेम एज इफ यू टेक अनदर एग्जाम्पल, ओके, कि फेरिक क्लोराइड क्या लिया हमने, FeCl3, उसको हमने किससे रिएक्ट कराया, अगेन अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराया, मतलब उसमें हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला, उसको हीट किया, तो अब फेरिक हमें किसका प्रेसिपिटेट मिलेगा, फेरिक ऑक्साइड का प्रेसिपिटेट मिलेगा, Fe2O3 डॉट XH2O। ये प्रेसिपिटेट हमें मिलता है, किस कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है, और अमोनियम और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेता है, अमोनियम क्लोराइड। तो ये आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है हमारे पास। ठीक है, जो हमको पढ़ना है, तो इजी है और इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। Presence of lone pair of electron on the nitrogen atom of the ammonia molecule make it Lewis base. We know that any substance having a tendency to donate
और शेयर द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्ट एज ए लुईस बेस। तो यहाँ पे क्योंकि इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इट एक्टिंग एज ए लुईस बेस एंड इट डोनेट्स द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म लिंकेज इन मेटल आयन फॉर्मेशन ऑफ सच कॉम्प्लेक्स। क्योंकि एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन की पहली कंडीशन होती है कि एक डोनर होना चाहिए और एक एक्सेप्टर। डोनर मस्ट हैव अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन डोनेट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अमोनिया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्टिंग एज ए बेस एंड फॉर्म अ सॉल्ट सॉल्यूशन also फॉर्म अ कोऑर्डिनेट कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहा है। तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे प्रोड्यूस सम पीपीटीज। ठीक है, जो हमको वहाँ पे मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब एग्जांपल्स हमारे पास यहाँ पे है। डिटेक्शन ऑफ मेटल आयन, हम कॉपर और सिल्वर को यहाँ पे क्या डिटेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट वन लेट अस सी, फर्स्ट इज ओके फर्स्ट तो copper 2+ when treated with ammonia form deep blue color. which color? deep blue color किसका बना है? टेट्रा एमीन कॉपर 2 सल्फेट या टेट्रा एमीन कॉपर 2। तो टेट्रा एमीन कॉपर 2 का यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? डीप ब्लू कलर। और इससे हमें ये आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि यहाँ पे क्या प्रेजेंस है? कॉपर है। सेम एज व्हेन सिल्वर स्टेटेड विथ क्लोरीन, तो हमें यहाँ क्या मिलता है? सिल्वर क्लोराइड, वाइट पीपीटी। और वो सिल्वर क्लोराइड फिर किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? रिएक्टिंग विद द अमोनिया। ठीक है, और अमोनिया के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है हमारे लिए? डाई एमीन सिल्वर, डाई एमीन, डाई वाई 2 डाई एमीन सिल्वर। ठीक है, 1 क्लोराइड। ठीक है, एंड ये कैसा हो जाता है? कलरलेस। तो वाइट पीपीटी जो था हमारे पास वो क्या हो गया? चेंज हो गया किस में? कलरलेस हो गया। तो ये भी एक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हो जाता है किसका? सिल्वर का। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स हमें हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में कि वहाँ पे जो भी है हम कह सकते हैं दिस रिएक्शन इज यूज एज ए टेस्ट फॉर द कैटायन इन क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ अमोनिया। व्हाट इज द यूज ऑफ अमोनिया? तो यूजेस ऑफ अमोनिया, अमोनिया इज यूज टू प्रोड्यूस वेरियस नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, ammonium nitrate, urea, ammonium phosphate and ammonium sulfate. So they are used to prepare such fertilizers in many inorganic compounds. ठीक है, नेक्स्ट इज लिक्विड अमोनिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिक्विड अमोनिया कैसे यूज होता है? एज ए रिफ्रिजरेंट। लिक्विड अमोनिया यूज एज अ रेफ्रिजरेंट। ठीक है, अब उसके अलावा भी अगर हम देखें तो इट इज़ ए लेबोरेटरी रिएजेंट। ठीक है, it is used as a cleansing agent for the removing grease. ठीक है, तो ये दे आर द प्रिपरेशन, दे आर द यूजेस ऑफ द अमोनिया। ओके, अनदर पॉइंट इज अ टेस्ट। हाउ विल टेस्ट द अमोनिया? तो अमोनिया का टेस्ट हम लोग लेबोरेटरी में करते हैं। इट टर्न्स मॉइस्ट रेड लिटमस ब्लू, लिटमस पेपर ब्लू एंड मॉइस्ट टर्मरिक पेपर ब्राउन। दिस इज द टेस्ट ऑफ अमोनिया। सेकेंड वन, इट गिव्स ब्राउन पीपीटी। कैसा पीपीटी देता है? ब्राउन पीपीटी विद द नस्ला रिएजेंट। इफ़ यू विथ ड्रॉप ऑफ, तो ये कुछ ऐसे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है विच आर डूइंग इन द लैब। विथ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इट गिव्स अ डीप ब्लू कलर। तो दे आर द टेस्ट ऑफ अमोनिया। सम क्वेश्चंस आर हियर। व्हाई अमोनिया एक्ट एज अ लुईस बेस? व्हाई? बिकॉज इट हैज lone pair of electron, or due to presence of this lone pair of electron it acting as a Lewis base. ठीक है, तो दिस इज ओके। सेकेंड, मेंशन द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कितना होना चाहिए? 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। ठीक है ना, टेम्परेचर कितना होना चाहिए? अराउंड 700 केल्विन होना चाहिए। ठीक है, एंड थर्ड इज अ कैटलिस्ट आयरन ऑक्साइड, molybdenum as a promoter. ठीक है, K2O. तो they are use of catalyst can maximize the yield of the ammonia. Third one is how does ammonia react with the solution of copper ion? तो अभी हम लोगों ने अब कॉपर आयन की रिएक्शन देखी पिछले इसमें। तो कॉपर आयन रिएक्ट्स विद अमोनिया। तो क्या क्या बना रहा था? टेट्राएमीन CuNH3 होल 4। ठीक है, 2+। तो ये प्रिपेयर कर रहा है।
तो ये जब रिएक्ट कर रहा है कॉपर अमोनिया के साथ तो क्या बन रहा है, टेट्राएमीन कॉपर 2। ठीक है, तो थैंक यू।